Number 64, Fox Limited. Let's do this sum. You should assume that today's date is 1st of June 2025. The finance director of Fox Limited has requested advice on the chargeable gains implications of the assignment sale of an existing lease. Okay, let's do this. Fox Limited hai Bravo, Salis, and Coro Limited. Let's do. All four of the companies are UK resident trading companies with a 30th June accounting reference date. ठीक है तो इनके 30th of June is their accounting reference date. Fox Limited assignment of lease and acquisition of a new freehold. On 1st of October 2024, Fox Limited assigned a 26-year lease on a factory to an unconnected company for 1,80,000. The lease had been acquired by Fox on 1st of October 2020, 2010 for 1,02,000 when it had a 40 years remaining life. ठीक है. The leased factory was used by Fox Limited for trading purposes throughout its period of ownership. अच्छा, तो trading purpose के लिए use किया गया था. That's nice. Fox Limited sold the office building. अच्छा, office building ये तो factory थी. ठीक है तो ऑफिस बिल्डिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट आइटम जो मैंने 43,000 का बेचा है. ठीक है. फॉक्स लिमिटेड क्लेम रोल ओवर रिलीफ in order to defer this chargeable gain following the acquisition of the lease of the factory. ओके. अच्छा ओके मैं समझा. बेसिकली हमने ये ऑफिस बिल्डिंग बेची थी. फॉक्स लिमिटेड प्लान्स टू परचेज अ न्यू फ्री होल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन सॉरी इन जुलाई 2025. सो सी पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि एज फॉक्समेट हैज सोल्ड एन ऑफिस बिल्डिंग एंड गेन्ड अ चार्जेबल गेन्स ऑफ 43,000 इट वर डेफर्ड. बराबर है. सो हमने फिर किया था फैक्ट्री. ठीक है. सो नाउ इट वाज डेफर्ड टू द अर्लियर ऑफ factory being factory being ceased to use in the trade, factory being sold, and 10 years after the purchase of the factory. Thus, the chargeable gain of 43,000, which was incurred on 8th of March 2010, would have been क्या होता है, would have been charged to capital gains tax as on the earliest of these three dates, which is 8th of March 2020. Therefore, the adjustment for the deferral has already been made. ऐसा मुझे लगता है. ठीक है ना. तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं. Calculate the chargeable gain on the lease on 1st of October 2024 and explain the tax treatment of the deferred gain in respect of the. तो वो अपन ने बोल दिया. ठीक है ना. वो जो हमको करना चाहिए था वो अपन ने बोल दिया. Now we move ahead. We move ahead to this 64 थे ना ये. हाँ. क्या नाम है इसका? Fox Limited. Sales proceeds, cost of acquisition, chargeable gains, $1,80,000. Cost of acquisition of lease. तो ये is 1,02,000. एक्चुअली हमें मुझे बेस कॉस्ट मतलब वो लिखना चाहिए था पहले तो. हम्म. तो अभी 26 years का लीज, 40 years लीज, 82.496, 95.457. ठीक है ना. दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस.
रहा है ना, इसकी वैल्यू गिर रही है ना, ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे आती है बेस कॉस्ट ये, मेरा गेन्स मेरे को ये मिलने चाहिए, चार्जेबल गेन्स। ठीक है ना। अभी ये कंपनी है, सो देयरफॉर देयर विल बी नो एईए अवेलेबल। मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, मुझे मुझे कहीं चार्जेबल गेन्स ही निकालना है, डन। To ignore indexation and any potential claim for rollover relief on the disposal of the lease, परफेक्ट है। आई थिंक ये मैंने परफेक्ट अटेम्प्ट किया हुआ है। हम्म, नहीं इसमें नहीं आया। 690 में भी कॉस्ट, वो नाइस परफेक्ट। ये देखो, 91849, 91849 परफेक्ट है। On acquisition of the lease had less than 60 years remaining, so we are a depreciating asset. Okay, nice। तो ये इन्होंने ऐसे निकाला है कि ये ऐसे depreciating asset है। तो मैंने वो एक्चुअली कंक्लूजन दिया नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे ये तो पता था कि वो तीन कंडीशन में से कोई तो कंडीशन यहाँ पे है, विच इज देखो यहाँ पे उन्होंने बोला 1 अक्टूबर 20। हमने 8 अक्टूबर 20 बोला था, मतलब ऑब्वियसली। लेकिन मैं इस कंक्लूजन पे आया, मैंने वो लाइन बोली नहीं जानबूझ के कि हम नॉन डिप्रिशिएटिंग से डिप्रिशिएटिंग में जा रहे हैं, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि भाई बिल्डिंग से फैक्ट्री इन्होंने कैसे नॉन डिप्रिशिएटिंग से मैं डिप्रिशिएटिंग बोलूं। बट दे हैव सेड कि बिकॉज ये 60 ईयर्स से लेस है, आप इसको डिप्रिशिएटिंग का नाम दे सकते हो, ऐसा। Accordingly, the gain on the factory building of 40,000 was deferred until the earliest of, तो ये देखो, date of the disposal of the lease, date of the lease ceased to be used in Fox Limited's business, and बिल्डिंग हुआ था मैंने फैक्ट्री में, आई थिंक फैक्ट्री बोला था, बट एनीवेज। फिर उन्होंने बोला 10 years आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द लीज, फिर आता है देयरफॉर द डेफर्ड गेन बिकम चार्जेबल ऑन 1 October 2020 एंड नॉट ऑन द असाइनमेंट ऑफ द लीज ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है ना, तो ये अपन ने बिल्कुल सही बोला। ए का फर्स्ट पार्ट तो हो गया। ए का सेकंड पार्ट, इन रिलेशन टू द चार्जेबल गेन calculated in A1, explain with supporting calculation the extent to which rollover relief will currently be available within the Fox Limited group। ठीक है ना। The extent to which the rollover relief will be available to Fox Limited। ठीक है। The minimum amount which Fox Limited will need to spend on the new freehold factory such that the full amount of eligible gain on A1 can be deferred using the rollover relief। ठीक है ना। हम्म, वगैरह उसकी कहीं बात की है क्या इन्होंने? नहीं। सी मैं बताया क्या बोल रहा हूँ। फॉक्स लिमिटेड का पहले हम ग्रुप बता देते हैं। द कंपनीज विच विल बी इन, टैक्स ईयर कौन सा, 25-26? वही नहीं दिया है, टैक्स ईयर नहीं दिया है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, हम पहले ग्रुप ही बता देते हैं। इन द करंट सिनेरियो वी कैन सी दैट फॉक्स लिमिट दैट द 75% गेन्स ग्रुप इंक्लूड्स फॉक्स लिमिटेड, ब्रावो लिमिटेड एंड सेलास लिमिटेड। ठीक है ना, ये नहीं आता बिकॉज इसका 90 × 80 72 होता है। However, the capital gains group includes Fox Limited, Bravo Limited, Coro Limited and Salas Limited। ठीक है ना, तो ये फोर कंपनीज आ जाती हैं। सो देयरफॉर रोल ओवर रिलीफ कैन, सो देयरफॉर ग्रुप रोल ओवर रिलीफ कैन बी क्लेम्ड बाय कोरो लिमिटेड एंड द अदर बिल्डिंग, मतलब अदर कंपनीज इन्वॉल्व। ठीक है ना। Thus, in the current scenario, we can see that the sale proceeds are 1,80,000. So therefore, this for rollover relief to be claimed, the sale proceeds, the 1,80,000 should be invested by either Salas, Fox, Bravo, Coro Limited or Fox Limited। From the current scenario, we can see that Coro Limited had acquired a warehouse on 1st of July 2024। हाँ, पहले तो अपने को वो ईयर बताना पड़ेगा कि द पीरियड क्या है। सो एज वी आर सोल्ड ऑन 1st of October 2024, द पीरियड फॉर रोल ओवर रिलीफ विल बी 1 year बिफोर द डिस्पोजल एंड 3 years आफ्टर द year of disposal। So therefore, we can say that Coro had acquired warehouse on 1st of July 2024 from an unconnected party for 1,68,000।
Hence, rollover relief can be claimed for the same. However, we can see that only 70% of the building was used for the trading purposes. So therefore 1,68,000 into 70% हमें करना पड़ेगा, जो हमको देगा 117,600 1,11,000 यार एक मिनट कैसे बोलो यार इसको, एक मिनट, 1,17,600, हाँ, ये ये हमको दे रहा है, ठीक है ना। दिस इज द रोल ओवर रिलीफ दैट वी कैन क्लेम। सो हाउ मच वी कैनॉट क्लेम रोल ओवर रिलीफ फॉर 62,400, एंड दैट विल बी टैक्सेबल इमीडिएटली, ठीक है ना, ये अपन बोल देंगे। This is the extent to which the rollover relief can be claimed. Now, the maximum amount which Fox Limited will need to spend on the new freehold factory such that the full amount is eligible gain in A1 can be deferred using, तो वही 62,400 इतना आपको बेसिकली डालना चाहिए मिनिमम अमाउंट इन द न्यू फैक्ट्री। हाँ, ये देखो प्लान टू परचेज कर रहा है ना। यस, दिस इज द अमाउंट विच यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन दैट फैक्ट्री। आई थिंक इतने में हो जाएगा। हम अभी बोलने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आई थिंक ये लिखेंगे तो 7 मास तक तो आराम से जाएगा। Fox Limited acquired at least 75% of the ordinary shares in Salas Limited on 1st of April 2025. Salas Limited became a member of the capital gains group with Fox Limited, Bravo Limited, and Coro Limited from that date. Coro is a member of the capital gains group as Bravo's holding in Coro is at least 75%, and Fox Limited's effective holding in Coro is more than 50%। परफेक्ट, तो ये हमने ग्रुप में आ गया। तो कैसे आ गया पहले अपन ने वो बता दिया। फिर इसका पीरियड क्या था, देखो 1 ईयर बिफोर एंड 3 इयर्स लेटर, तो इन्होंने ये डेट्स के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट्स उन्होंने बता दिया, लैंड एंड बिल्डिंग और फिक्स प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो फिर ये देखो उन्होंने भी वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया, एंड देन होल ऑफ द गेम इज एलिजिबल। लेकिन हमने कितना इन्वेस्ट किया, ये देखो 1,17,600, ठीक है। तो अभी हमें अकॉर्डिंगली ये देखो 62,400 of the proceeds from the disposal of the lease currently have not been reinvested. So this is the minimum amount that Fox must spend on acquiring new freehold factory in order that the full amount is eligible of the eligible gain on disposal of the lease can be deferred। Perfect, ठीक है ना। Explain the group relief claims available to Fox Limited Group in respect of Salas Limited's trading loss for the year ending 30th of June 2025। देखो इनका ईयर एंडिंग 30th of June 25 का है। हमने सलास को 1st of April 25 को एक्वायर किया हुआ है। सो ओनली 3 मंथ्स के लॉसेस कैन बी टेकन, पहले मैंने वो देखना है, ठीक है ना। ओनली 3 मंथ्स लॉसेस कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। अपन ये सब तो ठीक है। ज्वाइनिंग द वाज होनली ओन्ड बाय इंडिविजुअल प्रायर टू, ठीक है। इनकर्ड ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 30th ऑफ जून 24। ये देखो इसने ट्रेडिंग लॉस इनकर किया था 30th ऑफ जून 24 को। दिस लॉस वाज प्री एक्विजिशन लॉस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एनी ऑफ द कंपनीज इन द ग्रुप रिलीफ ग्रुप और इन द 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप, ठीक है ना। ये अपन ने बता दिया। दिस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन ओनली बी क्लेम्ड आफ्टर 5 years, after Salas Limited has spent 5 years within the group, that too if it has not earned profits until those 5 years, which would have led to set off of this brought forward loss। मतलब अगर उसने प्रॉफिट्स कमाए रहेंगे तो वो सेट ऑफ हो गया रहे, तो उसको पहले अपने प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ करना है ये वाले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को, उसके बाद ही वो हमको ये दे सकता है। ऐसा हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, वो जाने दो। देर आर नो प्लान्स टू चेंज, ये भी जाने दो, एक मिनट। देर आर नो प्लान्स टू चेंज द नेचर, हाँ सॉरी सॉरी, ये इसको इसको जाए जाए दो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ इफ द नेचर एंड द चेंज और द मतलब वो कंडक्ट, नेचर ऑफ कंडक्ट और वो सब चेंज नहीं हुआ है तो, एंड विच इट डज नॉट प्लान टू, सो दैट्स गुड, ठीक है ना। फोरकास्ट रिजल्ट्स क्या बोलते हैं, सलास लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू इनकर ट्रेडिंग लॉस ऑफ 2,25,000 द ईयर एंडिंग 30th ऑफ जून 25। परफेक्ट, तो हम लोग इसका खाली 3/12 ले सकते हैं। सो विच इज 2,25,000 का 3/12, 56,250, ओनली 56,250 ऑफ द लॉस कैन बी कैन बी यूज्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वगैरह वो सब, ठीक है। फॉक्स ब्रावो लिमिटेड
will each have taxable total profits in the year ending 30th of June. These companies have always been profitable in the past and will continue to be profitable in the foreseeable future. हाँ ठीक है. So this loss can be given to whichever company the best loss adjustment takes place. For example, if Coro is incurring, actually Coro नहीं, रुक जाओ. Coro group relief group में नहीं आता. कोरो 75% कहीं से भी होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब फॉक्स लिमिटेड कहीं से भी कोरो में 75% होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए कोरो नहीं आता. कोरो शुड नॉट बी इंक्लूडेड. ओनली फॉक्स एंड ब्रावो लिमिटेड. फॉर एग्जांपल, इफ ब्रावो लिमिटेड इज पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, but because of the loss it can pay tax at 19% after the loss set off, then losses should first be transferred to Bravo Limited. ये अपन बोल देंगे. आई थिंक इतना काफी है भाई. चेक करते हैं, इन्होंने इतना ही रखा आंसर. भाई तो इससे तो हमने लिखा है भाई. ये देखो, 56 to 50. देख लो. As Fox Limited acquired at least 75% of the ordinary shares in Salas Limited on 1st of April 2025, Salas Limited became a member of the group for group relief group purposes with Fox Limited and Bravo Limited from that date. Coro Limited is not a member of the group for group relief purposes, as Fox Limited effective holding in Coro is only 72%. Perfect. तो ये भी अपन ने बोला कि वो ग्रुप रिलीफ ग्रुप में नहीं आता. तो ये आंसर के कुछ सारे पॉइंट्स हमने एक्चुअली ऊपर भी बोले हुए हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करके हमको उसको नीचे भी लिखना है. तो ये देखो, फिर हम लिख बोलते हैं यहाँ पे प्री एक्विजिशन लॉस. अभी प्री एक्विजिशन लॉस में वो लोग ने यहाँ पे क्या बोला है? सेलास लिमिटेड हैज नो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम in any accounting period and generated a trading loss in the previous accounting period, which was its first accounting period. So there is possibility of taking current period or carry back relief in Selas Limited. Therefore, the amount of pre-acquisition loss available for group relief will be 1,68,750. The pre-acquisition loss will not be eligible for group relief against the total profits of Fox Limited or Bravo Limited until after 5 years from the end of the accounting period in which change in ownership occurred, that is 30th of June 2030, and then only to the extent that Salas Limited has not been able to relieve it against its own taxable profits. ये क्या है भाई? एक सेकंड रुक जाओ. ये भी अब अपने बराबर ही बोला था. Salas Limited has not been able to relieve it against his own taxable profits. पहले उसको खुद के taxable profit के सामने करना चाहिए, बाद में वो हमको दे सकता है. उन्होंने खाली ये डेट दी हुई है, ठीक है ना? ये डेट ऑफ बेसिकली हम कब इसको लॉस ट्रांसफर कर सकते हैं वैसा. पता है पोस्ट एक्विजिशन लॉस, ये भी अपन ने बराबर बोला कि भाई देखो 56 to 50 जो है इज अ पोस्ट एक्विजिशन लॉस. दिस लॉस मे बी सरेंडर टू फॉक्स ब्रावो. हाँ, एज पर द करस्पॉन्डिंग पीरियड. हाँ, एज पर द करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग पीरियड, ये लाइन बोलना ज्यादा जरूरी है. एनी रिमेनिंग लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर पॉसिबल. वो सब ठीक है. मैं बताया क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड. हाँ, ये जो प्री एक्विजिशन लॉस इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रुप रिलीफ अगेंस्ट द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ फॉक्स एंड ब्रावो अंटिल 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है वो. आई यूज टू थिंक कि 5 साल इसके बाद, मतलब 1st of April 30th से दे सकते हैं. बट दे हैव सेड उस ईयर का एंडिंग होने दो, उस ईयर के एंडिंग के 5 साल बाद हम लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, वैसा उन्होंने बोला है. ठीक है ना? ठीक है.